الرحیم، السلام علیکم ناظرین. میں اس وقت صحافیوں کے دھرنے سے جو کہ پارلیمنٹ کے باہر جاری ہے وہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ بہت اہم موقع ہے کہ جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اس قانون کے حوالے سے جو کہ ابھی تک پرپوزڈ ہے اور ابھی تک اس کو صرف اس کا مسودہ پیش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. وہ کالا قانون جو کہ میڈیا کی آزادی کو اور میڈیا کے جو تمام اس وقت جو ہمارا آزادی رائے ہے اس کو سلب کرنے کی ایک کوشش ہوگی. یہاں پہ سارے سینئر صحافی موجود ہیں، پی ایچ یوجیز ہیں، آر آئی یوجیز ہیں، جتنی یوجیز ہماری صحافیوں کی منتخب یوجیز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو چنتخب ہیں، اور چنتخب کا یہ دور ہے، لیکن ہم منتخب کی بات کر رہے ہیں جو یہاں پہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. اور سب سے اہم بات، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحافیوں کے لیے بات کی ہے، صحافیوں کی آواز کے لیے. وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب ہم پابند تھے سلاسل تھے، جب ہماری بولنے پہ پابندی تھی، محترمہ یہیں آئی تھی اور ہم سب کے ساتھ انہوں نے اس وقت بھی یکجہتی کی تھی اسلام آباد کے اندر. تو میرے ساتھ اس وقت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود ہیں، جن سے ہم بات کریں گے اس سلیکٹڈ، کیونکہ انہوں نے سلیکٹڈ کہا تھا سب سے پہلے، تو اس نظام کے بارے میں ان کی اب کیا رائے ہے، کیونکہ یہ مزید آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. السلام علیکم بلاول صاحب. السلام علیکم. بلاول صاحب، میں ایک تو آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، حامد میر صاحب بھی، باقی ہمارے جتنے سینئر صحافی ہیں ان کی موجودگی میں. یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کالا قانون جس کے لیے ہم سب احتجاج کر رہے ہیں، یہ اس منزل کی طرف ایک سفر ہے جو حکومت نے شروع کیا ہے، سنگل پارٹی سسٹم یا مزید عاملیت کی طرف، یہ اس کی طرف ایک قدم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا قانون ضرور ہے، لیکن یہ ان کا پہلا کوشش نہیں رہا ہے. اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر وقت کا ظالم، ہر وقت کا عامر نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کی صحافی کا آواز بند کرنے کا، پاکستان کا میڈیا کا کمزور کرنے کا. لیکن وہی میڈیا بعد میں جا کے ان عاملوں کے، ان ظالموں کے اکیلیس ہیل ثابت ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا کس طریقے سے مشرف نے میڈیا کے ساتھ ظلم کیا، اور پھر کس طریقے سے اسی میڈیا پہ اس کے خلاف، اس کے عامریت کے خلاف مہم چلایا گیا. جتنا ظلم ضیاء الحق کرتا تھا اتنا بہادری کے ساتھ پاکستان کا صحافی سچ کے ساتھ کھڑا رہتا تھا. اور یہ ایک نیا کالا قانون ہے. ہم اس نیا کالا قانون کو بھی نہیں مانتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قانون بنتا بھی ہے تو پاکستان کے صحافیوں میں اتنا دم ہے جنہوں نے ماضی میں مشرف کو شکست دلوایا، جنہوں نے ماضی میں عامر مشرف کو شکست دلوایا، وہ اس کٹ پتلی کو اور اس کٹ پتلی کے سارے کالے قانون کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. یہ بلاول صاحب، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر صحافی تو کھڑے ہیں ہر دور میں، پابندیاں سیاستدانوں نے اور جمہوریت پسند سیاستدانوں نے برداشت کی ہیں، لیکن ایک الزام اپوزیشن کے سر پہ بھی اس وقت جا رہا ہے کہ اگر اپوزیشن اکٹھی ہوتی، ایک پلیٹ فارم پہ ہوتی، تو شاید یہ جو سسٹم اس وقت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اتنا آسان نہ ہو جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس حکومت کی لیجیٹمیسی کی بات ہے، جہاں تک اس ملک میں جمہوریت کی بات ہے، جہاں تک اس ملک میں آپ کا آزادی کی، میڈیا کا آزادی کی بات ہے، تو سب ایک پیج پہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو یا مجھے یا پاکستان کا عام آدمی کو، اس وزیر اعظم کو ایک اور دن بھی وزیر اعظم برداشت کرنے کا. وہ کیسے؟ اس لیے ہم نے اسی پارلیمان کے فلور پہ جہاں سے وزیر اعظم عمران خان کا میجورٹی ثابت کر کے وہ وزیر اعظم بنا، اسی فلور سے ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینیٹر منتخب کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ عدم اعتماد جو ایک جمہوری ہتھیار ہے، وہ جمہوری ہتھیار استعمال کر کے ہم اس سلیکٹڈ کا جو دور ہے ختم کر سکتے ہیں. اور میرا آج بھی یہی اپیل ہے جو میں ان دنوں میں کہتا تھا ہمارے دوستوں سے کہ اس موقف پہ اگر ہم سب مل کے آ جائیں تو یا ہم اس کو فوراً گھر بھیج دیں گے یا اتنا ہلا کے رکھ دیں گے کہ وہ اس قسم کی ظلم
नहीं कर सकेंगे। इसके लिए करना क्या चाहिए? कोई ना कोई नवाबजादा नसरुल्लाह खान तो पैदा करना होगा जो कि हम सबके लिए लड़े। नवाब खान का बेटा मेरा साथ है, इधर ही खड़ा था, आपका एहतजाज में शामिल है और हमने बहुत की कोशिश की। असूलन जो पीटीएम का हेड होता है उनका ये इम्पार्शल ऐसा कोई रोल अदा करना चाहिए, लेकिन हमने वहां जो उनके साथ बैठ के रिटन में तय किया, जो हमने हर मीटिंग में कहा, जो हमने उनसे अलग होने के बाद भी कहा, अब मैं इंशाअल्लाह ताला हर डिस्ट्रिक्ट में जाके जगह जगह पहुंच के अवाम के सामने भी रखूंगा कि हम इमरान को निकालना चाहते हैं, हमें इस सिलेक्टेड डोर को खत्म करके एक दरवाजा खोलना चाहते हैं एक नया सियासत के लिए, एक वो सियासत जो अवामी नुमाइंदगी पे यकीन रखे और जो फैसले अवाम के नुमाइंदे करेंगे वो अवाम के लिए, अवाम के मुस्तकबिल को जरूर सोच के वो फैसले करेंगे। आपको लगता है कि जमहूरियत पे शब खून मारने की एक तैयारी है जिसका पहला निशाना सहाफी है, करना क्या चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये एक तसलसल है, ये मुसलसल होता रहता है, ये हर वक्त एक कोशिश है सारे वो उन कुव्वतों से जो नहीं चाहते हैं कि इस मुल्क में यहाँ के शहरी आज़ाद हो, यहाँ के शहरी अपने आज़ाद तरीके से वोट दे, यहाँ के शहरी अपने आज़ाद तरीके से सोचे, यहाँ के शहरी अपने आज़ाद तरीके से बोले। हमेशा इस सच के खिलाफ, इस आज़ादी के जो मुखालिफ है वो अपनी कोशिश करते रहते हैं। हमें अपना कोशिश जारी रखना है, हमें अपना जमहूरी स्पेस किसी को सीड नहीं करना चाहिए, हमें मीडिया में भी वो स्पेस नहीं सीड करना चाहिए, और सबसे ज्यादा वो पार्लियामान जो हमारे सामने है, अगर पाकिस्तान के सियासतदान अपना स्पेस उस फ्लो पे छीनने शुरू कर दे तो कोई और हमारा स्पेस में मुदाखलत नहीं कर सकेगा। तो हमारा ये मेहनत होगा, हमारा ये कोशिश होगा, हमारा ये जद्दोजहद होगा कि जमहूरियत के लिए जो स्पेस है, जो अवाम का स्पेस है, वो अवाम के पास वापस ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने बात की हमसे। एक तो ये तारीख में पहली बार हुआ है कि प्रेस गैलरी को जो है वो ताले लगे हैं। दूसरी बात ये कि क्या आपको लगता है कि एक सफ़े की हुकूमत अगर जमहूरियत और आज़ादी राय के खिलाफ काम कर सकती है तो अपोजिशन एक सफ़े पे क्यों नहीं आ सकती? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर तो हम इंशाअल्लाह, मेरी भी कोशिश और बाकी जो ऑपोजिशन पार्टीज के जो सरबराह हैं उनकी भी कोशिश है कि हम इकट्ठे पार्लियामान के अंदर एक जुबान के साथ बात करें और यकसुई के साथ हम तमाम मामला तय करें। इंशाअल्लाह मेरी आज भी ये कोशिश होगी कि मैं पीपल्स पार्टी, एएनपी और बाकी जो पार्टी के साथ मिलकर हम आज लाएमल तैयार करेंगे। और ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर जो एक काला कानून लाया जा रहा है, हम इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। किसी सूरत भी ऐसा काला कानून पास करने की ना हुकूमत के पास हिम्मत है और ना इंशाअल्लाह इसको हम पास होने देंगे। कराची में जब मैं था, वहां पर आप सब तंजीमों से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने वहां पर भी अर्ज किया था कि हम इस मामले में पीडीएम, मुस्लिम लीग नून और पीडीएम में तमाम शामिल जमातें और यकीनन बाकी पीडीएम के हटकर जो जमातें हैं वो सब आपके साथ इस वक्त पूरी तरह पूरी कुव्वत के साथ, कद के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस मामले में हमें आप अपने साथ हर वक्त पाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा यह ख्याल है कि अभी तक हुकूमत ये मसौदा नहीं लेके आई, वो न जाने किस सोच में पड़ी हुई है, लेकिन मेरी हुकूमत को ये तनबीह है और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो ऐसा काला कानून लाने से बाज रहे, वगरना उसको फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मीडिया के आज़ादी के लिए मीडिया ने खुद जंग लड़ी है, खुद स्ट्रगल की है, ये उनको किसी प्लेट में रखकर ये आज़ादी नहीं मिली, लिहाजा ये आज़ादी ना कोई उनसे छीन सकता है ना छीनने दी जाएगी। यकीनन मीडिया हमेशा ये कहता रहा कि जब पार्टियां ऑपोजिशन में होती हैं वो फिर मीडिया के साथ खड़ी होती है, लेकिन जब हुकूमत में आती हैं तो उनके फिर तेवर बदल जाते हैं। मैं समझता हूँ हामिद मीर साहब गवाही देंगे कि इस वक्त
PTI की हुकूमत के जो सरबराह हैं वो जब अपोजिशन में थे तो वो क्या कहते थे, और आज जो कुछ उन्होंने इन 3 सालों में मीडिया के साथ किया है, मेरा नहीं ख्याल, हाँ हम सब से गलतियां हुई होंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 74 साल में इस तरह की चीरादस्ती मीडिया के साथ किसी और हुकूमत ने सोची भी होगी। करना तो दूर की बात है, आपने उनका हाथ रोका, आपने उनके साथ पूरा जमहूरी अंदाज में मुकाबला किया, तो ये जमहूरियत की बात है, ये निज़ाम की बात है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम यहाँ पर आए हैं सच्चे दिल के साथ, और मियाँ नवाज शरीफ की पूरी आशीर्वाद के साथ उन्होंने हमें ये हुक्म दिया कि हम आपके पास हाजिर हों और आपको उनके बिहाफ पे और अपने बिहाफ पे हम यकीन दिलाएं कि इंशाअल्लाह इस जंग में हम आपके साथ हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान, उनसे हम बात करते हैं। मौलाना, आपको क्या लगता है कि ये जो बिल लाया जा रहा है इसके पीछे मकासद क्या है? देखिए, मैं इस हवाले से यहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में भी जाकर यकजहती का इजहार कर चुका हूँ, और ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी उन्होंने बनाई है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान मीडिया दंड अथॉरिटी है, और ये मीडिया का गला घोंटने के लिए और उनकी ज़बान को ताले लगाने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और यही आमरीत की अलामत होती है कि आमिराना निज़ाम में मीडिया को कैद कर लिया जाता है, उनकी आज़ादी राय के इजहार का हक उनसे छीन लिया जाता है, उनको बड़े शाइस्ता अंदाज के साथ एक अथॉरिटी बनाकर और उसे कानून का लबादा उड़ा के इस तरीके से वो आज़ादी राय पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। लेकिन हम चूंकि हमेशा से इजहार राय की आज़ादी की तहरीकों में आगे रहे हैं, हमने हमेशा आज़ादियों की बात की है, हमने जमहूरियत की बात की है, हमने अगर इस्लाम की बात की है तो वहाँ पर भी इजहार राय की तालीमात अल्लाह ने इंसानियत को हक दिया है। तो इस एतबार से ऐसे कवानीन काले कवानीन कहलाते हैं, और हम यकीनन इस हवाले से मीडिया के साथ हैं। मौलाना, जब भी जमहूरियत पे शबखून मारा जाता है सबसे पहले मीडिया का गला दबाया जाता है, तो आपको लगता है कि कोई खतरा मौजूद है इस वक्त भी जमहूरियत के लिए? देखिए, जमहूरियत और सहाफत एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम हैं। जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ सहाफत नहीं होती, जहाँ बादशाहत होती है वहाँ सहाफत नहीं होती, लेकिन जहाँ जमहूरी माहौल होता है उसमें सहाफत भी पनपती है और उसको भी उरूज मिलता है। तो पूरी दुनिया में इसके मनाज़र जो हैं हर जगह देखे जाते हैं। हम ये इस बात के तो हामी हैं कि मीडिया जो है वो खुद अपने लिए एक अखलाकी ज़ाब्ता खुद बनाए, और वो भी पाकिस्तानी हैं, उनको भी अपने घर की हुर्मत और अपनी ज़ात की हुर्मत जो है बहुत अजीज़ है। तो इसी तरीके से मीडिया में एक शाइस्तगी और वक़ार पैदा करने, लेकिन दुनिया के हालात से और हक़ाइक़ से कौम को आगाह करने का जो उनका हक है वो नहीं छीनना चाहिए। लास्टली बस के आपको नहीं लगता कि जमहूरियत और के लिए अपोजिशन को जितना इस वक्त इकट्ठे होने की जरूरत है इससे पहले कभी ना? मेरे ख्याल में इस वक्त जो PDM मौजूद है वो पूरे अपोजिशन की इकट्ठ की अलामत है, और बहरहाल मुझे अफसोस है कि हमारे कुछ साथी इस वक्त हमारे सफ में नहीं हैं, लेकिन ये उनकी गलती है, उनको भी इस सफ में होना चाहिए था। और इसका जो फायदा आमिराना कुव्वतों को हुआ है, गैर जमहूरी कुव्वतों को हुआ है और सिलेक्टेड कुव्वतों को हुआ है, ये फायदा उनको नहीं मिलना चाहिए। आपने जबरदस्त धरना पहले भी दिया था, अभी दोबारा आप कह रहे हैं, इस दफा आपके साथ कौन कौन शरीक होगा? पहले तो आप तन्हा रह गए थे। इस दफा बहरहाल PDM तो है और वो शरीक होगा, और मेरे ख्याल में जब हम तमाम जमातों को, सियासी जमातों को दावत देंगे तो जिस तरह पहले हमारी दावत पर उन्होंने लब्बैक कहा था, अब भी मुझे उनसे उम्मीद है कि वो इख्तिलाफात से बालातर होकर पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए PDM के इस भरपूर एहतजाज, धरना या जो भी आप उसको कहें उसमें शिरकत करेंगे। मौलाना, इससे पहले जो बिलावल साहब से भी हमने ये सवाल पूछा कि इस वक्त नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब की जितनी जरूरत है उस किरदार की, उस शख्सियत की, उससे पहले कभी ना थी, और आप वो शख्सियत हैं जो कि ब्रिज बन सकते हैं तमाम इख्तलाफात को के खात्मे के लिए। तो क्या आप अपना कोई हाथ बढ़ाएंगे पीपल्स पार्टी की तरफ और दीगर जो कुव्वतें उनको इकट्ठा करेंगे? देखिए, हमारे तो हाथ अभी तक भी
अगरचे उन्होंने हाथ निकाले हैं, लेकिन हमारी उंगलियां अभी भी उनके हाथों में हैं, उसका वो फायदा उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आप देख रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान जो हमेशा जमहूरियत और आइन की सरबलंदी के लिए एक बहुत अहम आवाज रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि अपोजिशन को इकट्ठे करने की जरूरत है और तभी आगे जो है वो बढ़ा जा सकता है। हम खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं धरने से जो कि सहाफियों का है, यहाँ पे उस कानून के खिलाफ जो कि हुकूमत लाना चाह रही है PMDA का। आप हमारे साथ रहिएगा। अगर ये काला कानून आया, हम टोटल ब्लैकआउट करेंगे गवर्नमेंट की हर किस्म की खबरें। जब काल पड़ा आवाजों का, जब दीवानों का कहत हुआ, फिर किस पर संग उठाओगे? अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे, डर जाओगे, डर जाओगे। अब वक्त है कि तमाम जमहूरी कुव्वतें, तमाम सिविल सोसाइटी, तमाम ट्रेड यूनियन ब्रॉडर अलायंस करें और एक दूसरे पे मुत्तफिक हों कि इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ कानून की बालादस्ती होगी, आइन की बालादस्ती होगी और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के इम्बैलेंस को हम खत्म करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बहुत सीनियर जो सहाफी रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफी भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। पहले सबसे हामिद मीर साहब, आप बताएंगे कि ये क्यों एहतजाज की जरूरत पेश आई है और क्या आपका जो मकसद हम सब सहाफियों का ये इकट्ठे होने का है वो हासिल हो सकता है? देखें, ये जो हमारा एहतजाज है इसकी दो तीन बड़ी वजूहात हैं। एक तो जो कारकुन सहाफी हैं उनका इस मुल्क में मुआशी कत्लेआम हो रहा है। हजारों की तादाद में सहाफी जो है वो पिछले 3-4 साल में बेरोजगार हुए, फिर उनकी तनख्वाहें जो है वो उनको वक्त पे अदा नहीं की जाती, और फिर ये जो मीडिया जा रहा है इसकी भी हम मुखालफत कर रहे हैं। आप ये देखें कि आज आपके अलावा यहाँ पे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, काशिफ अब्बासी साहब, फाद हुसैन साहब, सलीम साबी साहब, गरीदा फारूकी साहबा और बहुत से जो सहाफी हैं वो भी मौजूद हैं। शहजादा जुल्फकार साहब PFUJ के प्रेसिडेंट हैं, नासिर जैदी साहब हैं, अफजल भट्ट साहब जो इस पूरे एहतजाजी धरने की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके सरबराह हैं, एक्शन कमेटी आज यहाँ पे सहाफी तंजीमों और सहाफी रहनुमाओं ने यहाँ पे बातचीत की है और अपोजिशन के लोग भी आए हैं और हुकूमत के इत्तेहादी MKM वाले भी आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत अब अगर इस कानून को बाई हुक एंड क्रूक जोर जबरदस्ती से मंजूर करवाने की कोशिश करती भी है तो आज का ये धरना जो है ये कामयाब हो चुका है, हुकूमत की शिकस्त हो चुकी है। बिल्कुल। शहजादा जुल्फकार साहब, आपको क्या लगता है कि जो जमहूरी ताकतें हैं, सहाफी हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश की गई है, कोशिश जारी है, इन सबको मजबूत बनाने के लिए सहाफियों को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में तो ये हमेशा से ये अमल रहा है, आप किसी को गद्दार कह दें, किसी को बैरूनी एजेंडे पर काम करने वाला आप उसको कह दें और आप जो है उनको कह दें कि आप जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक जो है वो फोर्सेस के हाथों खेल रहे हैं, लेकिन असल काम ये किया है जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनके साथ ये खिलवाड़ किया गया है, साफियों के साथ किया गया है कि साफी जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं और प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो लिहाजा वो तो ये काम करेंगे और उनकी कोशिश पूरी है कि वो हमें कमजोर भी करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस मजमे से, इस कैंप से, इस धरने से आपने अंदाजा लगा लिया कि इस वक्त तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं वो एक पेज पे हैं और एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं। मेरे ख्याल में अब हुकूमत का बस नहीं है कि इस सैलाब को रोके वो। अफजल भट्ट साहब, आपको लगता है कि पहले जैसे कहा जाता था कंट्रोल्ड पार्लियामान है, कंट्रोल्ड इदारे हुए, फिर उसके बाद जिस तरह से अब सहाफियों के अंदर भी जो है वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और चंद चुनतखब किस्म के सहाफी भी सामने आ गए और तंजीमें, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे साथ तो पहली दफा नहीं हो रहा, ये कोशिश जनरल ज़िया-उल हक ने भी की थी। मुशर्रफ के खिलाफ जब आप सब लोग हमारे साथ फुटपाथ में थे उस वक्त भी लोग स्क्रीन पे बैठ के रोजाना कहते थे कि पाकिस्तान का मीडिया आजाद है। ऐसी जिन्स जो है मार्केट में हमेशा अवेलेबल होती है जो आज उनको अवेलेबल है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए आज जो सबसे ज्यादा जरूरी पैगाम है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सदर पाकिस्तान के जॉइंट सेशन के मौका पर पार्लिमानी प्रेस गैलरी को ताला लगा है।
ये कभी किसी डिक्टेटर के दौर में भी नहीं हुआ। माड़ी चंगी जैसे तरह की पार्लियामेंट होती थी वो जर्नलिस्टों को आने देते थे, और आज PRA पर प्रेस गैलरी का दरवाजा बंद करके उनको कैफेटेरिया तक महदूद कर दिया गया है। इमरान खान साहब का और कोई काम याद रहे ना रहे, आज का ये जो अटैक है प्रेस फ्रीडम पर, ये सारी उम्र उनके माथे पे क्लिंक के टीके की तरह मौजूद है। अच्छा, ये नहीं मानते, हम नहीं मानते, ये कभी नहीं मानते। अच्छा सलीम साफी साहब, ये बताइएगा कि जब भी किसी हुकूमत ने छेड़ा है मीडिया को, उसके लिए अच्छा नहीं हुआ। क्यों हुकूमत ये हमाकत करेगी कि वो मीडिया को छेड़े? एक तो ये कि अगर माजी में असली हुकूमतों ने छेड़ा है तो वो मीडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो जाली हुकूमत क्या बिगाड़ देगी। दूसरी बात ये कि आज की बात नहीं है, ये सिर्फ ये जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि ये असल में पाकिस्तान मीडिया डिमोलिशन अथॉरिटी है। और अगर हमने इसको पास होने दिया तो इसका मतलब है कि फिर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं रहेगा, वो नॉर्थ कोरिया बन जाएगा। दूसरी बात ये कि ये काफी अरसे से शऊरी कोशिशें हो रही है, ये सिर्फ ये इस तरह की कदगनों का मामला नहीं है। मसलन आप देखें हामिद मीर साहब को कितने साल हो गए कि उनको गोलियां लगी थी, आज तक कोई तहकीकात नहीं हुई। फिर रिसेंटली आपने देखा कि असदूर के साथ क्या हुआ, फिर मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ, अफसार आलम के साथ क्या हुआ। इस तरह तो किसी शेर नापुरसान में भी नहीं होता। तो ये वो सेटअप है कि जो इस मामले में एक पेज पे है कि मीडिया से दोनों चीजें छीननी है, आजादी जो उसके लिए सांस की हैसियत रखती है और फाइनेंसेस जो उसके लिए ग़िज़ा की हैसियत रखती है। लेकिन जिस तरह के कहा गया कि हम वो काम नहीं करेंगे, आरिफ अलवी की तरह हम PTV के बिल्डिंग पे नहीं चढ़ दौड़ेंगे, हम इन लोगों की तरह सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस को पामाल करके उस पे गंदे कपड़े नहीं लहराएंगे, लेकिन जमहूरी तरीके से अपने इन कायदीन की क़यादत में हम वर्कर बन के इंशाअल्लाह न सिर्फ इस बिल को कानून नहीं बनने देंगे, बल्कि इस तरह के जितने भी हथकंडे हैं उनको नाकाम इसलिए बनाना होगा कि अगर इनको हमने कामयाब होने दिया हुकूमत को, तो फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा, न इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। आप उसको नॉर्थ कोरिया कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। तो मीर साहब फिर क्या किया जाएगा आपके ख्याल में? क्या सहाफती तंजीमें, यहाँ पे बड़ी बड़ी सियासी जमातें अब तक जो है वो कामयाब नजर नहीं आ रही इस हुकूमत को हिलाने या आज़ादी इजहार और जमहूरियत के लिए? सहाफी ऐसा क्या करेंगे कि कामयाब हो सके? देखें आसमा शराजी साहबा, आपको याद होगा 2007 में परवेज मुशर्रफ के दौर में आप पर भी पाबंदी लगी, मेरे पे भी पाबंदी लगी, काशिफ अब्बासी साहब पे भी थी, शायद मसूद साहब पे भी थी। तो उस वक्त तो परवेज मुशर्रफ का दौर था, और ये अफजल भट्ट साहब जो हैं ये उस वक्त भी इस तरह ऑर्गेनाइज करते थे धरने, रोड शो। तो मगर अब्बास साहब भी उसके गवाह हैं, नुसरत जावेद साहब भी उसके गवाह हैं, ये सारे दोस्त जो हैं अक्सर लोग। तो ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है। उस वक्त भी शायद आपको याद हो कि हमें लोग कहते थे यार ये परवेज मुशर्रफ जो है इसने मुल्क में इमरजेंसी लगा दी है, आइन मुअत्तल कर दिया है, आपका क्या बनेगा? अब तो आप लोग जो है वो आपका मीडिया में कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन उस वक्त भी हमारा अल्लाह पर तवक्कुल था, अल्लाह पे भरोसा था, अल्लाह बादशाह है। तो आज भी अगर ऑपोजिशन कुछ नहीं कर पा रही कोई बात नहीं, अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा कोई बात नहीं, अगर पाबंदियां हैं हम पे कोई बात नहीं। हम समझते हैं कि हमारा उस वक्त भी अल्लाह पे भरोसा था, आज भी अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह ताला की मदद से हमने उस वक्त भी जदोजहद की, कामयाबी हासिल की। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी अल्लाह के भरोसे पे जदोजहद करते हुए हम कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा ख्याल है कि यही वो अहद है, और हर दौर के अंदर सहाफियों को बहुत मुसीबतें आई हैं, लेकिन जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, जो आसमानों में बांटेगा रोशनी अपनी, वो आफताब इसी सरजमी से निकलेगा। और वतन की रेत जरा एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। फैसला आपका। हम आपके साथ
عوام میں جانے کے لیے تیار ہیں. ہم مزید اس غلامی کو قطعاً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. سیاہ کا کالا قانون نہیں کر سکا، نہ وہ شرف کا کالا قانون نہیں کر سکا، وہ کسی کٹپتلی کا کالا قانون نہیں کر سکے. انشاءاللہ ہم فردن اور اجتماعاً ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب تک کہ اس کالے قانون کو دفن نہیں کیا جاتا، ہم انشاءاللہ اس گھڑی تک آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے.